ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां पुलिस ने 7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बात करेंगे बैतूल की, जहां महावीर जयंती पर जैन समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अहमदाबाद के चांगोदर थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के प्रयास व हत्या का मामला चंद घंटों में सुलझा लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन पहले चांगोदर स्थित रसमधुर कंपनी के परिसर में एक छोटी बच्ची का शव मिला था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्ची के चेहरे, कमर और पीठ पर गंभीर चोटें पहुंचाई और उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश जाट, पुलिस उपाध्यक्ष नीलम गोस्वामी, सांगण संभाग LCB SOG तत्काल मौके पर पहुंचे तथा चांगोदर पुलिस एवं सांगण डिवीजन के अन्य पुलिस थानों में कुल 60 अधिकारी कर्मचारियों की 6 अलग अलग टीमें संगठित कर डॉग स्काउट एवं FSL तकनीकी टीमों को तैनात किया गया। अपराध स्थल की गंध के आधार पर कुत्तों द्वारा कुछ संदिग्धों का पता लगाया गया। आरोपी से गहन पूछताछ के दौरान रविंद्र कुमार छोटेलाल सिंह मोजी साहब ने कबूला कि उसने बच्ची से जबरदस्ती करने पर चिल्लाई तो सिर पर ईंट से वार कर हत्या कर दी। इस अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई की गई। पूरे मामले में आरोपी को पकड़ने में डॉग स्काउट की अहम भूमिका रही और अंजाम देने वाले शख्स को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तारीख 8/4/2025 રોજ ચાંગોદર પોલીસ સ્ટેશનને ફરિયાદ મળી આવેલી હતી કે એક 6 વર્ષની બાળકીનું મૃતદેહ મળી આવેલ છે। ચાંગોદર પોલીસ સ્ટેશનના કર્મચારી અને અધિકારી ત્યાં પહોંચતા ઝાયડસ બાયોટેક પ્લાન્ટની નજીક ઓરડીમાં એક ડેડ બોડી 6 વર્ષની બાળકીની મળી આવેલ હતી। આ બનાવને પ્રથમ દ્રષ્ટિએ જોતા હત્યાનો બનાવ સામે આવેલ હતું। વધુ તપાસ હાથ ધરતા અને જે ઉપરી અધિકારી શ્રી છે અમારા IGP શ્રી મહેરબાન IGP શ્રી વિધિ ચૌધરી મેમના નેતૃત્વને હેઠળ આ તપાસને હાથ ધરવામાં આવેલું હતું। આ જે બનાવ છે એની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને IGP સર ખુદ મોનિટરિંગ કરવામાં આવેલું અને જે મૃતદેહ છે એનું તરત પોસ્ટમોર્ટમ અને FSL રિપોર્ટ કરવામાં આવેલ છે। આ તપાસને ધ્યાનમાં રાખીને SP સર LCBની વેરિયસ ટીમ્સ, SDPO સાણંદની વેરિયસ ટીમ્સ અને આજુબાજુના પોલીસ સ્ટેશન્સના 60 to 70 કર્મચારીઓ આ તપાસમાં જોડાયેલા હતા અને 12 કલાકની અંદર ડિટેક્શન કરવામાં આવેલું હતું। તપાસ દરમિયાન 100 જેવા મજૂરોની પૂછપરછ અને 50 જેવા CCTVને દેખવામાં આવેલ હતું અને જેમાંથી 3 સસ્પેક્ટ મળી આવેલા હતા। જે 3 સસ્પેક્ટને ડોગ સ્કોડની મદદ, જે ડોગનું નામ હતું ઓરિયો અને જે ડોબરમેન બ્રીડ છે એની મદદથી અમારે આરોપી રવિન્દ્ર મોજીને ધરપકડ કરવામાં આવેલી હતી। રવિન્દ્ર મોજી ઉંમર 30 વર્ષ, મૂળ બિહારના છે। એ 2 મહિના પહેલાં ચાંગોદર પોલીસ સ્ટેશન ચાંગોદર વિસ્તારમાં આવેલા હતા। મૂળ બિહારથી છે। એમની જે ફેમિલી છે એ બિહારમાં રહે છે અને અહીંયા મજૂરી કામ હેઠળ આવેલા હતા। બનાવ આ રીતે બનેલો હતો કે બાળકી 2 વર્ષથી એકલી રમતી હોય છે ઓરડીમાં અને જે આરોપી છે એ બાળકીને બિસ્કિટના લાલચથી એની ઓરડીમાં લઈ ગયેલો હતો અને ત્યાં બાળકી પર દુષ્કર્મ કરવાની કોશિશ કરેલી હતી। ત્યારે બાળકી બૂમાબૂમ કરીને ભાગી ગયેલી હતી। બાળકી ભાગી ગઈને એની ઓરડીમાં ગઈ ત્યારે જે આરોપી છે એમના પાછળ ગયો અને એમને બ્લન્ટ ઓબ્જેક્ટ વડે બાળકીની મૃત્યુ નિપજાવેલ હતી અને લોહી લુહાણ કરીને બાળકીની મૃત્યુ નિપજાવેલી હતી। पुलिस वेरियस इंटेलिजेंस सोर्सेस, ह्यूमन सोर्सेस, CCTV कैमरास અને ડોગ સ્કોડ તથા ટેકનિકલ એક્સપર્ટ્સની મદદથી આરોપીને પકડવામાં આવેલ હતો। આરોપી મૂળ મજૂરી કરે છે। એ 2 મહિના પહેલા ચાંગોદર આવેલ હતા। મૂળ બિહારના છે। આપે કહ્યું કે 3 સસ્પેક્ટ સામે હતા, જેમાંથી એક આરોપી જે છે તેની ધરપકડ થઈ। એક રીતે ક્લિયર થયું હત્યા આને જ કરી છે, તેની કબૂલાત શું હતી? એમાં જે ડોગ સ્કોડની અમે પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ મદદ ખૂબ લીધેલી હતી। જે અમને જે ઘટના સ્થળે જે કપડું મળી આવેલ હતું એ ડોગના મદદથી એ આરોપી પાસેથી ઓળખ કરાવેલી હતી। ત્યારે ધરપકડ થયેલી હતી અને પછી આરોપીએ કબૂલાત આપેલી હતી। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। पांडरी गांव के बस स्टैंड पर दुकानों में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचे अग्निशमन दल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया। गर्मी के कारण आग लगने का प्रारंभिक अनुमान लगाया गया है। बस स्टैंड स्थित दुकानों में भीषण आग लगने की घटना हुई।
विदर्भ में हम सूरज की गर्मी मौत देख रहे हैं और अंजन गांव सुरजी के पंडरी बस स्टैंड पर 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। इस आग में दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ और सौभाग्य से शुरुआती जानकारी सामने आई है कि कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग लगने का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान है कि आग गर्मी की बढ़ती कठोरता के कारण लगी है। अग्निशमन दल कर्मी मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया और आग को काबू किया गया। अमरावती से सी न्यूज़ संवाददाता रवि खिराडे की रिपोर्ट। महावीर जयंती के शुभ अवसर पर जैन समाज के द्वारा बोलदेही नगर में महावीर जी की पालकी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए नगर में भ्रमण कर महावीर दिगंबर मंदिर बोलदेही प्रस्थान हुई। पालकी गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई। नगर में जहां जहां रैली का भव्य स्वागत किया गया। भव्य शोभा यात्रा बोलदेही दिगंबर जैन मंदिर से भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण महोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह से ही अभिषेक, शांति धारा और नृत्य नियम पूजन किया गया। पूजन के बाद भगवान महावीर स्वामी का पालना को झुलाया गया। श्रद्धालुओं ने विश्व शांति सद्भावना के लिए सामूहिक प्रार्थना कर नगर में गाजे बाजे के साथ यात्रा निकाली गई। इस शुभ शोभा यात्रा में नगर के समस्त सकल जैन समाज के वरिष्ठ ग्रामीण, बच्चे, महिलाएं, छोटी छोटी बालिका सांस्कृतिक नृत्य करते नजर आए। शोभा यात्रा में शैल जैन, मोंटी जैन, सोनू जैन, पदम जैन, पारुल जैन, मिंटू जैन, अमित जैन आदि मौजूद रहे। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। तापी में 7 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। निजर के वेलदा गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। 65 साल के बूढ़े ने 7 साल की बच्ची के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। लड़की आरोपी बूढ़े की दुकान पर पेप्सी लेने गई थी, तभी आरोपी लड़की को जबरदस्ती घर ले जाकर बलात्कार कर लिया। तब लड़की ने रोते रोते उसके माता पिता को बोला, जिसकी कंप्लेन निजर थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने कुछ ही घंटे में आरोपी दशरथ बंधु पांडवी को गिरफ्तार करके पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई जारी की है। तापी ज़िले के निजर तहसील के वेल्दा गांव में 9 अप्रैल 2025 को एक क्राइम रजिस्टर हुआ है, जिसमें रेप और द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पोक्सो के तहत एक गुना रजिस्टर किया हुआ है। जिसमें देखें तो एक 7 साल की बच्ची जो थी वो पास की दुकान में वो पेप्सी कोला लेने के लिए गई, तो वो दुकानदार जिसका नाम था दशरथ बंधुभाई पाड़वी, जिसकी एज करीबन 60 साल 60 ईयर की थी, तो उसने ज़बरदस्ती वो बदकाम किया हुआ है। और निजर थाने से पुलिस ने वो आरोपी की धरपकड़ करके आगे की तपास सब चालू है। तापी से सी न्यूज़ संवाददाता हितेश नाइक की रिपोर्ट। मांडू विधायक निवास पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सक्रिय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कौन सा ऐसा नेता है जो हमारे प्रधानमंत्री से मिलना नहीं चाहता। भारत के साथ आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने एक एक करके विषय निकाले, अभी आखिर में गरीब मुस्लिम लोगों के लिए वर्तमान की लोकसभा के अंदर क्या हुआ, बहुत सरल बात। भारत के अंदर न्यायपालिका को किसी भी कानून को चुनौती देने का अधिकार भी छीन लिया था। नालचा से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।